हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। पूर्व वीडियो रे आमे स्थानांक ज्यामिति एक्सरसाइज 6C रो 3 नंबर पर्यंत करथिले। आज आमे 4 नंबर रो स्टार्ट करिवा। तो 4 नंबर क्वेश्चन कोन कहूची ना गोटे त्रिभुजर शीर्ष बिंदुर स्थानांक हमकु देछि 1 - 3 2 - 5 x1 क्षेत्रफल देछि 4 वर्ग एकक हेले x रो मान निरूपण करिवा। तो सपोज आम आपको ए नहीं जाऊँ, ये है बी पॉइंट, ये है सी पॉइंट है। तो ताले एथिरे आम कौन देखिपे x1 x2 x3 बाहर करदे। x1 = 1, x2 = 2, x3 = x, y1 = -3, y2 = -5, y3 = 1 एमती आम लिखिदे। तापर आम कौन करवा ना त्रिभुजर क्षेत्रफल बाहर करवा। हाफ ABC त्रिभुजर क्षेत्रफल सूत्र लिखिदे। हाफ x1 y2 - y3 + x2 y3 - y1 + x3 y1 - y2 निजे लिखिदेव। त्रिभुज ABC क्षेत्रफल मुझे डायरेक्ट खाली आंसर बाहर करुँच है। तो त्रिभुज ABC लिखिब त्रिभुज ABC क्षेत्रफल = सूत्रटा आम जाचे ताकू लिखिदे जहाँ कहली। तापर = हाफ मॉडुलस ऑफ कौन कहला ना x1 y2 - y3 1 y2 - y3 -5 -1 + 2 x2 है 2 1 1 + 3 बुझीगला प्लस x3 है x -3 + 5 तो = हाफ ये गला -6 + 8 + 2x हाफ 2x + 2 रो मॉडुलस। नेक्स्ट = हाफ × 2 × x + 1 केते x + 1 हो। तो आमको सी देछि कौन x + 1 = दत्त अच्छे x + 1 = केते 4 क्षेत्रफलटा कौन अच्छे 4। तो x = 4 - 1 = 3 तो x मूल्य केते 3। नेक्स्ट जा k रो केउ मूल्य पर 3 - 5 k0 -4 7 स्थानांक विशिष्ट बिंदु मानक द्वारा गठित त्रिभुजर क्षेत्रफल 95/2 वर्ग एकक हम। तो सपोज यहाँ को ए नहीं जाओ, ये बी यहाँ को सी है। तो x1 केते x1 है 3, x2 है k, x3 है -4, y1 है -5, y2 है 0, y3 है 7 एमती आम बाहर करदे। तापर ABC त्रिभुज क्षेत्रफल = त्रिभुज ABC क्षेत्रफल = हाफ × x1 y2 - y3 + x2 y3 - y1 + x3 y1 - y2 सूत्र लिखिदे = हाफ 3 ये गला के 0 - 7 + k 7 + 5 + -4 -5 -0 होगला। तो ताले हाफ मॉडुलस -21 + 12k + 20 हाफ ये हो केते 12k -21 + 20 -1 होगला। तो आमको देछि क्षेत्रफल 95/2 प्रश्नानुसारे हाफ 12k - 1 = 95/2 तो 12k - 1 = 95 दैट इक्वल 12k = केते हो 96
k ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 96/12 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 8 ବୁଝିହେଲା। ତ କେର ମାନ 8 ହେଲେ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 95/2 ବର୍ଗ ଏକକ ହେବ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା 6 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଲା 2 3 0 5 1 y ସ୍ଥାନାଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବିନ୍ଦୁତ୍ର ଏକ ସହରେଖାରେ ରହିଲେ ୱାଇର ମାନ ନିରୂପଣ କର। 2 3 0 5 ଆଉ 1 y ତ ଆମକୁ ଦେଇଛି କ'ଣ 2 3 b ହେଲା 0 5 c ହେଲା 1 y ତ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଆମେ ସୂତ୍ର ଲେଖିବା। ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ହାଫ୍ x1 y2 - y3 ପ୍ଲସ୍ x2 y3 - y1 ପ୍ଲସ୍ x3 y1 - y2 ର ମଡୁଲସ୍। ଏ ସୂତ୍ରଟି ସମସ୍ତେ ଲେଖିଦେବ। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ବାହାର କରିବା। ତ ଆମ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କ'ଣ ହେବ ହାଫ୍ x1 ହେଲା 2 ଇଏ ହେଲା 5 - y ପ୍ଲସ୍ x2 ହେଲା 0 0 ମାନେ ତ ଟୋଟାଲ୍ ଟର୍ମଟା 0 ହେଇଯିବ ଆଉ ପ୍ଲସ୍ 1 3 - 5 ହେଇଗଲା ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ହାଫ୍ 10 - 2y ପ୍ଲସ୍ 0 - 2 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ହାଫ୍ -2y ପ୍ଲସ୍ 8 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ହାଫ୍ 2y - 8 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କମନ୍ ନେଇଯିବା। କମନ୍ ନେଇଗଲେ କେତେ ଯିବ 2 y -4 ହେବ y -4 ହେବ 2 2 କଟିଯିବ 2 2 କଟିଗଲେ କେତେ ହେଇଯିବ 2 2 କଟିଗଲେ y -4 ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନାନୁସାରେ କ'ଣ ସେ କହିଥିଲା ପ୍ରଶ୍ନାନୁସାରେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳଟା କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିଛେ y -4 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 0 କାହିଁକି ନା ଏକ ସହରେଖାରେ ରହିଲେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ହେବ 0 ହେବ। ତ y ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ 4 ତ yର ମୂଲ୍ୟ 4 ହେଲେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 0 ହେବ ଲେଖିବ। ଅତଏବ yର ମୂଲ୍ୟ 4 ହେଲେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 0 ହେବ ବା ଏକ ସହରେଖାରେ ଶେଷ ବିନ୍ଦୁର ଏକ ସହରେଖାରେ ରହିବେ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା କେର କେଉଁ ମୂଲ୍ୟ ପାଇଁ 2 3 3k 5 9 ତ 2 3 ହେଲା a 3k ହେଲା b 5 9 ହେଲା c ଏକ ସହରେଖାରେ ରହିବେ। ଏଇଟା ବି ସେଇଭଳିଆ ଲେଖିବା ଏଠାରେ x1 କେତେ x1 ହେଲା 2 x3 ହେଲା 3 ଏ ଯେଉଁ x2 ହେଲା 3 x3 ହେଲା 5 y1 ହେଲା 3 y2 ହେଲା k y3 ହେଲା 9 y3 ହେଲା କେତେ 9 ତ ଏ ବିଷୟରେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ହାଫ୍ ମଡୁଲସ୍ x1 y2 - y3 ପ୍ଲସ୍ x2 y3 - y1 ପ୍ଲସ୍ x3 y1 - y2 ଏଇ ସୂତ୍ରଟିକୁ ଆମେ ଲେଖିଦେବା ତାର ମଡୁଲସ୍। ତ ଏବେ କ'ଣ ବାହାର କରିବା ହାଫ୍ 2k - 9 ପ୍ଲସ୍ 3 9 - 3 ପ୍ଲସ୍ 5 3 - k ହେଲା ତାର ମଡୁଲସ୍। ଏତିକି ଆମେ ବାହାର କରିଦେବା। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ହାଫ୍ 2k - 18 ପ୍ଲସ୍ ଏଇଟା ହେଇଯିବ କେତେ 9 3 27 ଇଏ ହେଇଗଲା 3 3 9 27 9 କେତେ ହେଇଯିବ ପ୍ଲସ୍ 18 ପ୍ଲସ୍ ହେଲା 3 5 15 ମାଇନସ୍ ହେଇଯିବ 5k ବୁଝିହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ହାଫ୍ -3k ପ୍ଲସ୍ 15 -3k ପ୍ଲସ୍ 15 ଇଣ୍ଟୁ ହାଫ୍ 3k - 15 ଏକ ଶହେରେ ମାନେ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନାନୁସାରେ ହାଫ୍ 3k - 15 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 0 3k - 15 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 0 ହାଫ୍ ଯାଇକି ସେପଟେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ହରି ହେଇଗଲେ 0 ହେଇଯିବ। ତ k ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 15/3 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 5 ତ ତାହେଲେ k ର ମାନ 5 ପାଇଁ କ'ଣ ହେବ ବିନ୍ଦୁତ୍ରୟ ଏକ ସହରେଖାରେ ରହିବେ ଲେଖିବ ତଳେ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲା 8 ନମ୍ବର କେଉଁ ସର୍ତ୍ତରେ 1 1 3 5 x y ସ୍ଥାନାଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବିନ୍ଦୁତ୍ରୟ ଏକ ସହରେଖାରେ ରହିବେ। କେଉଁ ସର୍ତ୍ତରେ ନା ଆମେ ଯଦି କ'ଣ କରିବା ନା ଆମେ ବାହାର କରିବା ସପୋଜ୍ ଏଇଟା ହେଲା a
ଏଇଟା ହେଲା B, ଏଇଟା ହେଲା C। ଆମେ ବାହାର କରିଦେବା ଏଠାରେ x1 କେତେ, x1 ହେଲା 1, x2 ହେଲା 3, x3 ହେଲା x, y1 ହେଲା 1, y2 ହେଲା 5, y3 ହେଲା y। ବୁଝିଗଲା? ଆମେ ବାହାର କରିଦେଲେ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ। ଏ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଆମେ ସୂତ୍ର କ'ଣ ଜାଣିଛେ, ହାଫ୍ x1 y2 ମାଇନସ୍ y3 ପ୍ଲସ୍ x2 y3 ମାଇନସ୍ y1 ପ୍ଲସ୍ x3 y1 ମାଇନସ୍ y2। ଏ ସୂତ୍ରଟି ସବୁବେଳେ ଲେଖିବ। ଏ ସୂତ୍ର ଲେଖିଲେ କ'ଣ ହେବ, ତୁମର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ହେବ ଆଉ ଭୁଲିବନି କେବେ। ତ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ହାଫ୍ 1 ଇଣ୍ଟୁ 5 ହେଇଗଲା କେତେ ମାଇନସ୍ y ପ୍ଲସ୍ ହେଲା x2 ହେଲା 3, y3 ହେଲା 1 ମାଇନସ୍ y ମାଇନସ୍ 1 ପ୍ଲସ୍ x ହେଇଗଲା 1 ମାଇନସ୍ 5 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ହାଫ୍ 5 ମାଇନସ୍ y ପ୍ଲସ୍ 3y ମାଇନସ୍ 3 ପ୍ଲସ୍ x ମାଇନସ୍ 5x ର ମଡୁଲସ୍। ନେକ୍ସଟ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ହାଫ୍ 2y ମାଇନସ୍ 4x ପ୍ଲସ୍ 2 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ହାଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ 2 କମନ୍ ନେଇଯାଅ 2x ମାଇନସ୍ y ମାଇନସ୍ 1, 2 କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇଗଲେ 2x ମାଇନସ୍ y ମାଇନସ୍ 1 ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କ'ଣ କହିଛି, ସେ କହିଛି ଏକ ସହ ରହିବେ। ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନାନୁସାରେ କ'ଣ ଲେଖିବା, ପ୍ରଶ୍ନାନୁସାରେ 2x ମାଇନସ୍ y ମାଇନସ୍ 1 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 0, 2x ମାଇନସ୍ y ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1। ତ 2x ମାଇନସ୍ y ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1 ହେଲେ ଆମେ ଲେଖିବା ବିନ୍ଦୁତ୍ରୟ ଏକ ସହ ରେଖାରେ ରହିବେ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମକୁ କ'ଣ କହିଲା ନା, 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହୁଛି ଏକ ଚତୁର୍ଭୁଜର ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଦେଇଛି, ତାହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ। ତ ସପୋଜ ଆମେ ଚତୁର୍ଭୁଜର ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନାଙ୍କକୁ ଏଇଟାକୁ A ନେଇଯାଉ ହେଲା, ତାପରେ 2 4ଟା ହେଲା B, ଏ ହେଇଗଲା A, ଏ ହେଇଗଲା B, 0 5ଟା ହେଲା C, ଆଉ ଆମର D କେ -2 1। ଏମିତି ଆମେ ଆଗ ନେଇଯିବା। ମନେକର ଏକ ଚତୁର୍ଭୁଜର ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନାଙ୍କ A ହେଲା 1 0, B 2 4, C 0 5, D -2 1। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଆମେ ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଭୁଜଟି କରିବା ସେଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ବାହାର କରିବା ନା, ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ବନେଇଦେବା। ବୁଝିହେଲା? ଚିତ୍ର ବନେଇଦେବା A B C D, ଆଉ AC କର୍ଣ୍ଣ ଡ୍ର କରିଦେବା। ତ A ହେଲା ପିଲାମାନେ 1 0, B ହେଲା 2 4, C ହେଲା 0 5, C ହେଲା କ'ଣ 0 5, D ହେଲା -2 ଆଉ 1 -2 1। ତ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ ବାହାର କରିବା, A C D ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଗୋଟେ ବାହାର କରିବା, ଆଉ ଗୋଟେ A B C ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ, ତାପରେ ଦୁଇଟାକୁ ମିଶାଇଦେବା। ତ ଏବେ ଯିବା, ତ ଆମେ ଏବେ କ'ଣ କରିବା, A B C ତ୍ରିଭୁଜର ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନାଙ୍କ A B C ଆମେ ଲିଖିଦେଲେ ହେଲା। A B C ତ୍ରିଭୁଜ A B C ର ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ A ହେଲା 1 0, B ହେଲା 2 4, C ହେଲା 0 5 ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ଏଠାରେ x1 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ 1, x2 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 2, x3 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 0, y1 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 0, y2 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 4, y3 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 5। ବୁଝିହେଲା? ତ ତାପରେ ଆମେ ABCର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାର କରିବା। ତ୍ରିଭୁଜ ABCର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ହାଫ୍ 4 - 5 ପ୍ଲସ୍ 2 5 - 0 ପ୍ଲସ୍ 0 ଗୁଣିଦେଲେ ତ ସେ 0 ହେବ ଆଉ କ'ଣ ହେଲା, ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ହାଫ୍ -1 ପ୍ଲସ୍ 10 ପ୍ଲସ୍ 0
इज इक्वाल टू केते हम एटा हो 9/2 9/2 वर्ग एकक। नेक्स्ट से एसीडी त्रिभुजर त्रिभुज एसीडी त्रिभुज एसीडी शीर्षबिंदु शीर्षबिंदुर स्थान केते हम ए है 10 सी है 05 डी है -1 ए है 10 सी है ए है 10 सी है 05 डी है -1 x1 बाहर करदे x1 के 1 x2 है 0 x3 है -2 y1 है 0 y2 है 5 y3 है 1 है। तो ये आम त्रिभुज एसीडी क्षेत्रफल बाहर करवा त्रिभुज एसीडी क्षेत्रफल इज इक्वल टू हाफ x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2 is equal to half 1 5 minus 1 मिश्रण 0 1 minus 0 मिश्रण -2 0 minus 5 -2 0 -5 है। तो तार मॉड्यूलस इज इक्वल टू हाफ 4 + 0 + 10 इज इक्वल टू 14/2 इज इक्वल टू 7 वर्ग एकक। एबे कौन करिबा अतएव एबीसीडी चतुर्भुजर क्षेत्रफल एबीसीडी चतुर्भुजर क्षेत्रफल इज इक्वल टू त्रिभुज एबीसी क्षेत्रफल मिश्रण त्रिभुज एसी डी क्षेत्रफल इज इक्वल टू 9/2 + 7 इज इक्वल टू 9 + 14/2 इज इक्वल टू 23/2 एति 11.5 वर्ग एकक हो गला। तापर से भाया 10 नंबर करवा एक चतुर्भुजर शीर्षबिंदु मानकर स्थानांक देजी है 10 नंबर एटा ए नहीं जावा एटा को बी नहीं जावा एटा को सी नहीं जावा एटा को डी नहीं जावा बुझीगला। तो आम से जमी कले एबीसीडी पूर्व क्वेश्चन ये भी सेमती करदे है एसी कर्ण जोग करदेव है एसी कर्ण जोग कले आम कौन पाइबा त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एसीडी एमती दुईटा त्रिभुज पाइबा। तो ये त्रिभुज एबीसी लिख जमी कहली त्रिभुज एबीसी शीर्षबिंदु है शीर्षबिंदु होगा किए किए ए है -2 3 और बी है 3 - 2 3 और -2 सी है 7 और 4। तो x1 के -2 x2 के 3 x3 के 7 y1 है 3 y2 है -2 y3 है 4। तो त्रिभुज ए बी सी क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी क्षेत्रफल इज टू हाफ x1 y2 - y3 plus x2 y3 - y1 plus x3 y1 minus y2 is equal to half -2 -2 -4 plus 3 4 -3 plus 7 3 plus 2 बुझीगला। तो आम खाली भैल्यू गुड़ाक पुट करदे तो इज इक्वल टू हाफ 12 ये 3
ये हो 35 इजिकाल टू हाफ इंटू 25 वर्ग एकक 25 कौन हम वर्ग एकक। से त्रिभुज एसीडीर शीर्षबिंदुर स्थानांक एसीडीर शीर्षबिंदुर स्थानांक ए है -2 3 सी है 7 4 डी है 1 आउ 5। तो x1 एट्रे केते x1 है -2 x2 है 7 x3 है 1 y1 है 3 y2 है 4 y3 है 5। तो त्रिभुज एसीडी क्षेत्रफल केते हो से भाई हाफ इंटू x1 y2 - y3 से सूत्र लिखा सब बड़े है जोटा कि तुम रिमाइंड हो मन x2 y3 - y1 x3 y1 - y2 ये 3टा टर्म मन रखिए तो मिसेदेवा हाफ इंटू करदे बोले कौन हम आम क्षेत्रफल पाइबा हाफ -2 4 - 5 + 7 5 - 3 + 1 3 - 4 इजिकाल टू हाफ 2 + 14 - 1 इजिकाल टू 15/2 इजिकाल टू केते हम 7.5 वर्ग एकक। तो ये आम कौन जानिले ना एबीसी चतुर्भुजार क्षेत्रफल जमी पूर्व क्वेश्चन करते एबीसी चतुर्भुजार क्षेत्रफल इजिकाल टू कौन हम ए बी सी डी चतुर्भुजार क्षेत्रफल इजिकाल टू त्रिभुज ए बी सी क्षेत्रफल मिश्रण त्रिभुज ए सी डी क्षेत्रफल इजिकाल टू केते 25 मिश्रण 7.5 इजिकाल टू 32.5 वर्ग एकक हम आंसर। नेक्स्ट जी त्रिभुज एबीसी ए बिंदुर स्थानांक 1 1 ए बी एसी बाहुद्वार मध्यबिंदु यथाक्रमे डी -1 -2 और ई 3 2 हेले बी और सी स्थानांक निर्णय करी त्रिभुज एबीसी क्षेत्रफल स्थिर कर। तो आम कौन करवा ना स्थानांक निर्णय करवा स्थानांक केमती निर्णय करवा बी आउ सी एबीसी दीजिए ए बिंदुर स्थानांक है ए बी आउ एसी बाहुद्वार मध्यबिंदु भी दीजिए ए बी आउ एसी बाहुद्वार मध्यबिंदु दीजिए आउ ई भी दीजिए है त्रिभुज एबीसी रे ए है 1 1 आउ मध्यबिंदु ए बी और एसी मध्यबिंदु है डी -1 -2 और ई है 3 2 है। तो बीटा आम केमी बाहर करवा सपोज x2 y2 नहीं जाओ बी बिंदुटा है x2 y2 आउ सीटा सपोज नहीं जाओ x3 y3। तो आमर प्रश्नानुसार आम कौन जाने मध्यबिंदु स्थानांक 1 + x2/2 है -1 आउ गोटे 1 + y2/2 है -2 आपको सिंप्लीफाई करदे आ कौन हेले x2 इजिकाल टू -2 -1 जे हो -3 आउ y2 इजिकाल टू -4 -1 जे -5 हो गला। तो बी केते हो गला x2 y2 जे -3 -5 से भाया पुनश्च प्रश्नानुसार केते आउ गोटे प्रश्नानुसार ये लिखिदेव पुनश्च प्रश्नानुसार 1 + x3/2 है गोटे 3 आ गोटे है 1 + y3/2 है 2। तो आम कते पाइबा तो एपट साइडटा हो x3 इजिकाल टू 6 - 1 इजिकाल टू 5 और सेपटा हो y3 इजिकाल टू 4 - 1 इजिकाल टू 3। तो सी बिंदुर स्थानांक केते हो 5 आउ 3
तो आम ए बी सी त्रिभुजर कौन कौन पाइगले ए बी सी सब पाइगले। तो ए बी सी त्रिभुजर क्षेत्रफल बाहर कर त्रिभुज ए बी सी र क्षेत्रफल इज इक्वल टू हाफ मॉडुलस ऑफ x1 -5 -3 प्लस -3 गले ये हो 3 -1 प्लस 5 गले 1 प्लस 5 मतलब कि हाफ -8 प्लस -6 प्लस 30 इक्वल टू हाफ -14 प्लस 30 ये हो इंटू 16 8 वर्ग एकक। नेक्स्ट जी आम 12 नंबर 305 -1 पी पी बिंदु तो एक रेखीय हेले पी र मूल्य निरूपण कर। एक रेखीय माने कौन क्षेत्रफल 0 हम आउ कौन यहाँ हो आम नहीं को ए यहाँ को बी यहाँ को सी। तो यह सूत्र पकेबा त्रिभुज ए बी सी र क्षेत्रफल इज इक्वल टू हाफ -1 -p प्लस 5p -0 प्लस p 0 -1 प्लस 1 हो यहाँ आम के आसो 0 आसवा कथा। तो दैट इम्प्लाइज हाफ ये है -3 प्लस 5p 0 हो प्लस p है नेक्स्ट इक्वल्स टू इक्वल टू के 0। तो हाफ एगुरा 3p -3 इज इक्वल टू 0। तो दैट इम्प्लाइज 3p -3/2 इज इक्वल टू 0। 3p इज इक्वल टू 3 p इज इक्वल टू 3/3 जे 1। तो p र मूल्य केते गला 1 हेले 305 -1 पी पी एक रेखीय हेबे। नेक्स्ट जीवा 13 नंबर पी 2p 3p 3p 3 1 एमाने एक रेखीय हेबे हेले पी र मान से सेम बुझेला। एटा हला ए एटा को बी एटा को हमें सी नहीं जीवा। तो ए बी सी त्रिभुज क्षेत्रफल बाहर करिबा त्रिभुज ए बी सी र क्षेत्रफल इज इक्वल टू हाफ मॉडुलस ऑफ पी 3p -1 प्लस 3p 1 -2p प्लस y लगे 3 2p -3p इज इक्वल टू केते हबो 0 हबो इज इक्वल टू केते हबो 0 हबो। तो हाफ 3p ର स्क्वायर -p प्लस 3p -6p ର स्क्वायर -3p एति इज इक्वल टू 0। तो हाफ -3p ର स्क्वायर ये 6p हाँ -3p ର स्क्वायर ये जीवो -p प्लस 3p तो -p कटि जीवो एटा जीवो -p इज इक्वल टू 0। तो आमे कौन जानिचे ना ताको 0 रे पुट करिबा दैट इक्वल्स टू p कदी कॉमन नहीं जीवा हमरो एटा के जीवो 3p + 1 और हाफ सार पटे हरि गले कोन से 0 हबो। तो ताले p इज इक्वल टू 0 बा 3p + 1 इज इक्वल टू 0। तो 3p इज इक्वल टू -1 p इज इक्वल टू -1/3 बुझा। तो p र मूल्य 0 हो पारे कि p र मूल्य -1/3 हो पारे लिखिदब नोट करदब हला। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीव 14 नंबर दला x -1 2 -1 2 1 सने एक रेखीय हेबे। तो एटा a एटा b एटा को c नहीं जा। तो ताले सन केमते एक ना हमें तार क्षेत्रफल बाहर कर दो 0 हबो आ कोन से सेम प्रोसीजर हला। तो हमें कौन लिखिबा त्रिभुज ए बी सी र क्षेत्रफल इज इक्वल टू हाफ x -1 -1 प्लस 2 1 प्लस 1 प्लस 2 -1 -1 बोले प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हेबो एबा लिखिदब। तो -1 प्लस 1 तो कटिवर 0 हो टर्मटा किसी आमको लिखा पड़ो ना। तो हाफ केते हबो -2x प्लस 4 प्लस एटा कहली 0 हो गला इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट जीवा हाफ -2x -4
इज इक्वाल टू 0। तो हाफ 2x माइनस 4 इज इक्वाल टू 0। 2 कमन आनी पकेले एटा हो केते हाफ इंटू 2 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वाल टू 0 इज इक्वाल टू 0। तो x माइनस 2 इज इक्वाल टू 0, x इज इक्वाल टू केते जो आंसर हमर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा हमें 15 नंबर हमर कोन कहला 15 नंबर कहूँ x5 बिंदुटी a0 0b बिंदु दुई दिगटीर संयोगकारी सररेखा उपरे अवस्थित हेले प्रमाण कर x बाय a प्लस y बाय b इक्वल टू 1। तो एग्जाम रे प्राय आसे। तो आम कौन करवा ना या आमको से कहला जे संयोगकारी रेखा आम यार डायग्राम टी बनईदेवा यार डायग्राम भी आम बनइबा यार डायग्राम टी आम बनइबा एटा हला एक्स डैश आउ एक्स ये हो गला वाई डैश आउ वाई हो गला। तो हमें क्यू पी गोटे क्यू एटा पी नहीं जाऊँ जे एक्स वाई नहीं जाऊँ स्थान को ओरिजिन तो पिला माने जेटा 0 0 हम आ यार स्थानटा ए आउ 0 ये बिंदुर स्थानाक ए नहीं जाऊँ हो गला। तो आम एबे समस्त स्थान देले लिख ए कौन लिख ओ मूल बिंदुर स्थानाक 0 0 ए बिंदुर स्थानाक ए 0 बी बिंदुर स्थान सब लिखिदेव है 0 भी नोट करदेव जहाँ कहे से नोट करदेव ए बिंदुर स्थानाक ए 0 बी बिंदुर स्थानाक 0 बी ओ ए इज इक्वाल टू केते हेबो ओ ए इज इक्वाल टू ए एकक से बड़ा ओ बी इज इक्वाल टू बी एकक स्मॉल बी है आउ पी बिंदुर स्थानांक आम लिखिले एक्स वाई बुझीगला। आउ पी बिंदुर वाई अक्ष प्रति लंब आम गोटे कर पी क्यू पी बिंदुर वाई अक्ष प्रति आम लंब अंकन कले से पी क्यू है। तो ओ क्यू रो मूल्य केते हो ओ क्यू ना ओ क्यू ये दिग है वाई आउ ओ क्यू है ओ क्यू है केते ओ क्यू है वाई पी क्यू है एक्स पी क्यू है आमर केते एक्स है एमती बाहर करदेव। तापर आम जा आमर कौन ना बी क्यू बाहर करवा बी क्यू इज इक्वाल टू ओ बी माइनस ओ क्यू इज इक्वाल टू बी माइनस वाई हो गला। तो ये आम कौन करा ना बी क्यू पी आउ बी ओ ए त्रिभुज को देखा है त्रिभुज बी क्यू पी ओ त्रिभुज बी ओ ए मध्य कौन मध्य लिख कौन हम बी क्यू पी कौनटा बी ओ ए कौन सहित सामान बा 90 डिग्री है आ एटा कौन साधारण कौन एटा कौन साधारण कौन है। तो तापर आउ कौन रहीगला आमर नेक्स्ट कौन हम आ बढ़ीज बी पी क्यू कौन इज इक्वाल टू बी ए ओ कौन सामान हो बी ए ओ कौन दैट इम्प्लाइज ये तीनटा कौन से कौन जानले त्रिभुज बी क्यू पी टा सदृश हो कौन हो सदृश हो बी ओ ए सहित है। तो सदृश हेल्ले आम कंडीशन कौन आम जाने पी क्यू बाई ओ ए इज इक्वाल टू बी क्यू बाई बी ओ दैट इम्प्लाइज एक्स बाई ए इज इक्वाल टू बी माइनस वाई बाई बी। तो एक्स बाई ए इज इक्वाल टू एटा हो बी बाई बी माइनस वाई बाई बी। तो एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वाल टू 1 प्रूव बुझीपाल है भल से देख बुझ जो न बुझा कमेंट सेक्शन लिखी जनइब है 2-3 थर प्रैक्टिस करदे पिलाने जो स्टेप बुझी न पार तुम पुणी पचारि पार। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा 16 नंबर कहला प्रमाण कर जे ए बी ए डैश बी डैश ए माइनस ए डैश बी माइनस बी डैश एक रेखीय नुहति ता अर्थ है कौन क्षेत्रफल 0 ना एक रेखीय हेनी आ कौन है। सपोज आम यहाँ को ए बी सी आम स्थानांक नहीं जाऊँ
এইটা হল এ ইয়ে হয়ে বি ইয়ে হয়ে সি লিখিদেব এ হল এ বি হল এ ড্যাশ বি ড্যাশ সি হল এ মাইনস এ ড্যাশ বি মাইନস বি ড্যাশ। ଏକ ରେଖୀୟ ହେବେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେବ ନା କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 0 ହେବ। ତ ଆମେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାର କରିଦେଉ। ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ହାଫ୍ x1 y2 ମାଇନସ୍ y3 ପ୍ଲସ୍ x2 a ଡ୍ୟାସ୍ y3 minus y1 plus x3 minus a dash y1 minus y2 ଏମିତି ସଜେଇକି ପୁରା ଧୀରେ ଧୀରେ ଲେଖିବ ତ ଭୁଲ ହେଇଯିବ ହେଲା। ତ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ହାଫ୍ ଏ ବି ଡ୍ୟାସ୍ ମାଇନସ୍ ଏ ବି ପ୍ଲସ୍ ଏ ବି ଡ୍ୟାସ୍ ମାଇନସ୍ ଏ ଡ୍ୟାସ୍ ବି ଡ୍ୟାସ୍ प्लस ए बी माइनस ए बी डैश माइनस ए डैश बी प्लस ए डैश बी डैश। तो ये आम कौन करवा ए सजेगी लिखिदेवा बुझीगला। आम कौन कौन बढ़ ए डैश बी डैश देख प्लस ए डैश बी डैश माइनस ए डैश बी डैश कटिगला से भाया माइनस ए बी ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ବି ଅଛି କଟିଯିବ ଏ ଡ୍ୟାସ୍ ବି ଏ ବି ଡ୍ୟାସ୍ 2 ଏ ବି ଡ୍ୟାସ୍ ଅଛି ବୁଝିହେଲା। ଏ ବି ଡ୍ୟାସ୍ 2 ଏ ବି ଡ୍ୟାସ୍ ଆଉ ଏ ଡ୍ୟାସ୍ ବି ଏ ବି ଡ୍ୟାସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ମାଇନସ୍ ଏ ବି ଡ୍ୟାସ୍ ଏଇଟା ତ ତାହେଲେ गोटे ए बी डैश आउ है ए डैश बी ये खाली बढ़ला। तो ये आम कौन करवा इज इक्वाल टू हाफ ए बी डैश माइनस ए डैश बी ये तो क्षेत्रफल 0 है कि तो ये लगे बिंदुत्रय एक रेखीय नुहति लिख बिंदुत्रय एक रेखीय नुहति जे नुहति तार क्षेत्रफल 0 नुहे आ कौन जाए क्षेत्रफल भी 0 हम क्या। 17 नंबर को जीवा ए है पी प्लस 1 1 बी है 2p प्लस 1 3 आउ यहाँ सी नहीं जा है 2p प्लस 2 2p एक रेखीय हेल्ले पी मान स्थिर कर एक रेखीय आम कौन सूत्र ना त्रिभुजर क्षेत्रफल कौन हम त्रिभुज एबीसी क्षेत्रफल 0 हम त्रिभुज एबीसी क्षेत्रफल केते हम 0 हम। तो ये फर्मूला पकेबा हाफ p plus 1 3 minus 2p plus 2p plus 1 2p minus 1 plus 2p plus 2 1 minus 3 हो गला 0। तो ये हम कौन करवा हाफ ये हो 3p plus 3 minus 2p square minus 2p प्लस 4p स्क्वायर माइनस 1 माइनस 4p माइनस 4 इज इक्वाल टू 0 रही पे ग्रहण कर भी भूल करनी। तो ये आम सिंप्लीफाई करदे तो हाफ ये 2p स्क्वायर 4p स्क्वायर 2p स्क्वायर 2p स्क्वायर ये 3p 4p 2p से के माइनस 4p माइनस 6p ये 3p माइनस 3p हो माइनस 3p ये हो गला प्लस 3 माइनस 1 प्लस 3 माइनस 1 फिर माइनस 4 प्लस 3 माइनस 1 हो गला 2 माइनस 4 माइनस 2 हो गला। तो यहाँ हो आमर हाफ 2p स्क्वायर माइनस 3p माइनस 2 हेले आमर केते हो इज इक्वाल टू 0 इज इक्वाल टू केते 0। तो ताहले 2p स्क्वायर हाफटा जाके हरिदेले केते हो 2p स्क्वायर माइनस 3p माइनस 2 इज इक्वाल टू 0 हाफ हरिदेले 0 जेकोसी संख्या हरिले 0 हो तो ताको आम भांगीदेवा 2p स्क्वायर माइनस गोटे दीघा समीकरण ना 4p प्लस p माइनस 2
-2 ଇଜିକାଲ୍ 0 କାହିଁକିନା ପ୍ରଥମ ଶେଷ ପଦର ଗୁଣଫଳଟା ମଧ୍ୟ ପଦର ଗୁଣଫଳ ସହିତ ସମାନ ଆସୁଥିବା କଥା ହେଲା, ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିଲା ବେଳେ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ। p-2 + 1 p-2 ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ 0। ତ p-2 × 2p + 1 ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ 0। ତ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ p-2 ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ 0 ବା 2p + 1 ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ 0। p ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ 2 କିମ୍ବା p ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ -12 ବୁଝିହେଲା। ତ ଲେଖିଦେବ p ର ମୂଲ୍ୟ 2 କିମ୍ବା -12 ହେବ ବୋଲି ନୋଟ୍ କରିଦେବ ଯାହା କରାଯାଉଛି। ପିଲାମାନେ ଯେଉଁଟା ନ ବୁଝିପାର ତ 2-3 ଥର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ ଦେଖି ଦେଖି। 18 ନମ୍ବର ଲାଷ୍ଟ ନମ୍ବର xy 3 4 -5 -6 ବିନ୍ଦୁତ୍ର ଏକରେଖ ହେଲେ ପ୍ରମାଣ କର ଯେ 5x - 4y + 1 = 0। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ବି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସେ। ତ ଏକରେଖ ମାନେ କ'ଣ? ଏଇଟାକୁ a ନେଇଯାଅ, ଏଇଟାକୁ b ନେଇଯାଅ, ଏଇଟାକୁ c ନେଇଯାଅ। a ହେଲା xy, b ହେଲା 3 4, c ହେଲା -5 -6 ବିନ୍ଦୁତ୍ରୟ ଏକରେଖୀୟ। ଏକରେଖୀୟ ମାନେ କ'ଣ ହେବ? କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 0 ହେବ। ଆମେ ଲିଖିଦେବା ତ୍ରିଭୁଜ ABCର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ ହାଫ୍ x 4 ମାନେ ଅଛି ଯେ +6 ହେଇଯିବ +3 -6 - y +-5y -4 ଏ ହେଇଯିବ 0 ହେବ। ହେଇଗଲା। ତ ହାଫ୍ 10x - ସେ ହେଇଗଲା 18 -4x 6x 10x ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଖିଦେଉଛି ପିଲାମାନେ -3y -5y ଇଏ ହେଇଯିବ +20 ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ 0। ତ ହାଫ୍ ଏ ତ 10x ତ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଇଏ ହେଲା -8y ଇଏ ହେଇଯିବ 20 18 +2 ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ 0 ହେଇଗଲା। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ ହାଫ୍ 10x - 8y +2 ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ 0। ତ ଏଇଟା 2 କମନ୍ ଆଣି ପକେଇଲେ କେତେ ହେଇଯିବ? ହାଫ୍ × 2 × 5x - 4y + 1 ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ 0। ତ ଲାଷ୍ଟକୁ କେତେ ପାଇବା? 5x - 4y + 1 ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ 0। କ'ଣ ହେଇଗଲା? ପ୍ରୁଭ୍ ହେଇଗଲା। ଲେଖିଦେବ ପ୍ରୁଫ୍। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଏଇ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲେ 6C ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଜ୍ୟାମିତିର ହେଲା। ତ ଆଶା କରୁଛି ତୁମେମାନେ ଭଲସେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଯେଉଁଟା ବୁଝି ନ ପାରିଲ ତାକୁ ତୁମେ ବାରମ୍ବାର ଥରେ ଥରେ ତାକୁ ଦେଖିକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ। ନ ବୁଝିପାରିଲେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଲେଖି ଜଣାଇବ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବା ଯେମିତି ଭୁଲିବନି, ଆଉ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବ, ଯଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ଯାହା କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ପଠାଇବା ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ସେମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖିକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ। ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ କରିନ ସେମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ। ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ କହିବ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଯଦି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେଲା ମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ହେବ? ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିବ, ଆଉ ଯଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଭଲସେ କ'ଣ କରିପାରିବ? ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିପାରିବ ହେଲା। ତ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ତା'ର ସର୍ଟ ଟାଇପ୍ ଆଉ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା।